Hello, hello, say hello. 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 So, I don't know why that extra hello came on. It was Yeah, I really don't know. awkward. This is it's been a while since we been a while, released an yeah. episode, So, so yeah. we're rusty. Rusty, yes, a little bit. So, today's episode is about a very funny comedian. I think he's one of the funniest guys. I think he's the funniest comedian he's in the- India. in I'm India, just gonna yeah. say it out. Yeah. I think he's the funniest I comic think he's in the India. funniest comic in India. I saw him as a kid, and I saw him now, and still as funny. Still as funny. That's funny. We're of Still course hilarious. we're of course talking about Raju Srivastav. As Kamba once was talking to me, we were talking, and he pointed out that a lot of people look down upon Hindi comedians. upon Hindi comedians. I don't know why that is. I think No, I'll tell you. This is why I think so. The problem is not Hindi comedians. The reference is often made. A lot of the humor on TV is lowbrow. Yeah. Okay, and that automatically attaches itself to Hindi comedians across the board. Yeah. Where I agree. I find a lot of the Hindi comedians not funny, but Raju is one of those comics who just genuinely stands out purely because he's just so funny, and also his observations are so sharp. Yeah, I don't think there is another comic in the country who just does the kind of observational Observations humor. that he does, yeah. And also who's slogged it out for so long. Yeah. He's been doing it since stand-up was even stand-up. Stand up, yeah. So for me and Tanmay, for the both of us, this was sort of a very special thing Yeah. to go and be able to talk to him, and for him to be so hospitable and to be Yeah. able to share the kind of stuff Yeah. he did about his life. It was cool. And I don't think a lot of people would even know some of the stories he shares. So this episode is going to be a little different. It's going Yeah. to be relaxed. It's going to be chilled out. It's going to be us talking to Raju, him sharing his stories. Yeah, and also it's going to be entirely in Hindi. Entirely in Hindi. So yeah, if you're in Chennai, go fuck yourself. basically. Yeah, in short. Again, so like we said, it's hilarious And we're gonna take you through the first part of our interview with him. the interview with Raju. And a lot of stories about his early career and how he got into stand-up. A lot of interesting stuff. A lot of stuff you will not be aware of. So give it a listen. And I hope you guys enjoy it. Cue music. ऑफिशियल जैसा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सर कुछ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, और क्या हाल है, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। कब की बात है? क्या बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो। हाँ, Hello. Welcome to All India Bakcho. Kamba say hello. Hello. Raju bhai say hello. से हेलो तो सब है, मगर ये तुम लोगों का हरामीपन का शो है। और हमारा जो नाम है ना, हमारा नाम अभी तक अच्छा है। अभी तक अच्छा है। आपका नाम सर, आपका असल नाम राजू श्रीवास्तव नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। ये लेकिन तब भी हमने रखा नहीं दिलीप कुमार की तरह। ये नाम मतलब है, असली है, लेकिन हाँ वो स्कूल कॉलेज वाला नहीं है। स्कूल कॉलेज वाला नाम कैसे? अरे यार, हमारे भैया हम लोग 6 भाई हैं। हाँ, 6 भाई 1 बहन। उस जमाने में आपको पता ही है कि खूब बच्चे होते थे। तो हमारे सब भाइयों के नाम के आगे प्रकाश लगा हुआ है। अच्छा। तो सबसे बड़े हैं प्रेम प्रकाश, फिर उसके बाद चंद्र प्रकाश, फिर उसका ज्ञान प्रकाश, फिर मेरी बहन है, फिर उसके बाद मैं सत्य प्रकाश, फिर धर्म प्रकाश, फिर मेरा भाई सबसे छोटा जो मुझे देखते हुए वो भी भागा है बॉम्बे, और उसको लगता है इसमें बहुत अच्छा है, जो जोक सुनाओ और लोग हंसाओ और पैसे बहुत आते हैं, तो उसका नाम है विश्व प्रकाश। तो इस तरह से हम राजू क्या बचपन राजू बचपन का नाम है यार, उसमें कोई ना डाउट मत करो, कोई बदतमीजी मत करो। तो हमारे जो दोस्त हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो जब मुझे कभी टीवी में देखते हैं और वहाँ टाइटल में आता है राजू श्रीवास्तव, तो वो मुझे सत्यप्रकाश जानते हैं। बोलते साला ये लग तो रहा हमारा दोस्त, मगर ये उसके जैसा कोई है। अब उनको घर का नाम मालूम नहीं, फिर एक बोलते लेकिन यार होगा वही, आखिर श्रीवास्तव तो है ही है। सर लेकिन सर देखो सर, मैं और खंबा हम दोनों स्टैंड अप सर, हमने बचपन से आपको देखा है और जॉनी भाई को देखा। अब शुरू किया तुमने मेरी उम्र बढ़ाना। अब सर आप हैं थोड़े बूढ़े तो बुढ़ा होगा तेरा बाप। सर जैसे पहली मेमोरी बताता हूँ मैं आपको। मैं आई थिंक 9 साल का था और मैं न्यू ईयर पार्टी थी, तो सब लोग चले गए और मेरे को अकेला छोड़ दिया घर पे। मैं अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था। दूरदर्शन पे तब
कुछ तब केबल टीवी वगैरह तो कुछ नहीं। दूरदर्शन पे आपका एक शो था, आप तब एक अच्छा, set में- दूरदर्शन से मेरे को याद आया, हाँ। दूरदर्शन कभी सीधा अच्छे से प्रोग्राम पेश कर ही नहीं पाता है। जब भी प्रोग्राम होगा उसमें बिंदियां आने लगेंगी, ऐसा लगता है किसी ने 1.5 किलो साबूदाना छोड़ दिया है। और खिर होता रहेगा। और मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर थे, तो वो जो खिर होता तो इतने पेशेंस के साथ बोलते थे, देखो ऊपर एंटीने पे कौवा बैठा है। और आज भी सारे चैनल से कौवा उड़ गया है, लेकिन दूरदर्शन वाला अभी भी बैठा हुआ है। तो आप क्या बता रहे थे बचपन का? सर, तो स्टोरी है कि मैंने आपका पहला शो तब देखा था, और ऑफ कोर्स उस उम्र पे कुछ याद तो पता होता नहीं। बस मुझे याद है कि दूरदर्शन का सेट बहुत खराब था। 4 वो कार्डबोर्ड लगा हुआ था। बिल्कुल। और आप वहाँ पे आई थिंक अकेले सोलो परफॉर्म कर रहे थे। बस मैं सोलो कर लेता हूँ। सोलो, ये तो दोनों चीजें बड़ी लग्जरियस हैं। लेकिन सोते कोई ले नहीं सकता। सवाल ये था कि सब जो हमारे जैसे जनरेशन, जैसे मैं और तन्मय बहुत 25 साल के, अरे कमाल हमने है। आपको पहली बार देखा था लाफ्टर चैलेंज पे, पर आपने कब से शुरू करा वो स्टोरी किसी को पता ही नहीं। बहुत लोगों को पता है, और सब लोग ऐसे ही करके इंटरव्यू लेते हैं। सर, जो हमारे सुनने वाले ये तुम्हारे सुनने वाले बड़े ढूंढ के लाए हो। आपको हम जवान लगते हैं, हमारे सुनने वाले और भी जवान है सर। अरे वाह, आपकी जवानी बने रहे। लेकिन सर हमने आपको देखा, आपने किन्हें देख के, मतलब आपकी कोई इंस्पिरेशंस कुछ तो होगा। मैं ज़रूर हूँ स्टैंड अप की फील्ड में और लोगों का हंसा रहा हूँ, लेकिन जिनको देख के मुझे एक्टिंग करने का हुआ या नकल करने का हुआ, वो कोई ऐसे मेरे जो आइडियल हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। ही इज़ मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जी, हाँ, उस समय हमें ना तो पता था कि कोई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। ये स्टैंड अप कॉमेडियन शब्द भी मुझे बहुत साल बाद पता चला, क्योंकि अपने इंडिया में जो अनाउंसर होता था ऑर्केस्ट्रा में, वही बीच में मिमिक्री करता था। तो कोई अलग से कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होता था। हाँ, जोक सुना रहा है वही गा बीच में हम मिमिक्री वगैरह करता था। तो हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट ही करके जानते थे, या और छोटे शहरों में बोलते थे कैरी कैचरिस्ट, कैरी कैचर करने वाला। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ पता नहीं था ये कोई फील्ड है या कोई प्रोफेशन है। तो जब होश संभाला मैंने, तो बचपन में मैं एक बार छोटा था। अच्छा है ना, पता चला, नई बात पता चली। हाँ, तो फिर जब होश संभाला और पहली फिल्म देखी, तो वही शोले थी। तो मुझे, अच्छा, छोटा बच्चा फिल्म देख के निकला, तो छोटे बच्चों को दोस्ती और मोहल्ले के दोस्त और वो सब बहुत अच्छे लगते हैं, कि उनके साथ गुल्ली डंडा खेलता है, उसके साथ पिक्चर भी चला जाता है। तो दोस्त कई बार वो परिवार से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बहुत छोटी एज में तो बहुत। तो मुझे उस शोले में दोस्ती की बात थी, और अमिताभ बच्चन दोस्ती के लिए उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो वो मुझे बहुत लग गया मेरे दिल को। एंडिंग पता नहीं था सर। हाँ, मैं आज सब राज खोल दूंगा मैं। तो वो बात बहुत लग गई मुझे, और मुझे इतने अच्छे लगे क्योंकि दोस्ती निभाई थी वगैरह वगैरह। फिर मैंने उसके बाद तुरंत दीवार देखी जल्दी, फिर जंजीर देखी। तो मैं अमिताभ की मिमिक्री करने लगा। मैं कब करने लगा पता ही नहीं चला, बस मैंने कमर पे हाथ रखा और टेढ़े होकर ज़रा सा बोला, झुक के बोला, तो अरे भैया ऐसा है कि रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ऐसा है जो आपका ये शो है, क्या नाम है इसका, हाँ बकचोदी जो भी है, ये जो है जैसा भी है ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। आपका सबसे पहला जोक क्या था, याद है आपको? जो पहला जोक अपने स्टेज पे किया था, जिसमें तालियां पड़ी थी। जी हाँ जी, पहले तो अमिताभ की मिमिक्री थी। जो मैं दीवार का डायलॉग सुनाता था उस टाइम पे आइटम पेश करते थे सर। हाँ, मैं अनाउंसर होता था, और अनाउंसर को के बीच में गैप बना लेता था, कि जहाँ पे वो समझो डांसर तैयार नहीं हुई है, या ड्रेस चेंज कर रही है, तो वो गैप निकाल के मैं अमिताभ का डायलॉग बोल के क्लैप ले लेता था ऑडियंस के। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, जब एक मिमिक्री में इतनी तालियां बज रही, तो क्यों ना इसके आगे पीछे भी कुछ बोलूं।
तो कहीं एक शेर बोल दिया बीच में, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ऐसे स्टार्टर बीच में लगाता था, चिपका देता था। हाँ, तो कट पीस बोलते थे उस जमाने में। हाँ, तो कट पीस बीच में लगाते थे, फिर डायलॉग बोलते थे। तब एक आइटम बना था और शम्मी कपूर पे गाना पिक्चराइज था, मोहम्मद रफ़ी साहब का। वो मैं करके दिखाता था, वो हालांकि विजुअल ज़्यादा है। हाँ, कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गाने को अलग अलग कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा था तो बहुत स्टैंडर्ड मिमिक्री टेम्पलेट होता था कि मिमिक्री करना तो ये एक चीज अलग-अलग लोगों ने बोला तो कैसा होगा। हाँ, तो इस गाने को डिफरेंट घरों में लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे सुबह सुबह ब्रश करते वक्त बहुत लोग गाना गाते हैं। ब्रश टूथपेस्ट लिया, ब्रश में लगाया और शुरू हो गया, फिर इसको लेडीज कैसे यूज करती हैं इसी गाने को, अपने बाल संवार रही हैं और मिरर के सामने बैठी हैं, बालों पे हाथ है और गाते गाते बीच में जूं उनके हाथ में आ जाती है, फिर से गा रही हैं, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा वल्ला, अब मिल गया जूं, वल्ला वल्ला इन और तेरा हो, आजा आजा, मारेंगे कैसे, आजा नाखून के ऊपर रखा, आजा आजा मर गया। फिर तीसरा कैरेक्टर था कि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में यूज करते हैं जब डब्बा लेके बैठते हैं, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा फ्रेश होके आ गए। लेकिन सर आपने जब से जोक सुनाना शुरू किया स्टेज पे, तब से तालियां पड़ रही है कि शुरुआत में कोई हंसता ही नहीं था, ऐसे कुछ अभी शो हुए जो बहुत खराब हुए जैसे किसी को नहीं, अभी के एकदम शुरू में शुरुआत अभी के भी नहीं, मुझे याद है कि याद नहीं हाँ नहीं आ जाएगा टाइम, बारिश हो रही है और अभी चाय आई नहीं है इसलिए कुछ तो बोलना है। नहीं, ये जो देखिए उस जमाने में ना लोगों ने बहुत बेहतरीन डांसर को देखा नहीं था। मतलब ना वो ऋतिक रोशन का डांस देखे हुए थे, ना गोविंदा का डांस देखे हुए थे, ना शाहिद कपूर का देखे हुए थे। तो मैं जहाँ कमर पे हाथ रख के शुरू कर देता, अरे कमर में बैठा दो बिजली का क्या काम है मेरे अंगने में, तो मतलब लड़कियां खुश हो जाती थी। हाँ, तो मेरा काम हो जाता था उतने में। फिर रंग बरसे वगैरह गाता तो ऐसे कोई बोर हो रहा हो ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोग हमें तो सुनाना है, अब उस समय लोगों को सुनना है या नहीं सुनना है। हाँ, हमें मौका चाहिए कि आज मैं फलाने दोस्त की पार्टी में आया हूँ, मैं कुछ चीज़ें सुना दूँ। अब मैं सुना रहा हूँ, बीच में 3 लोग उठे और खाना लगाने लगे, फिर 2 लोग और उठ के बाथरूम चले गए, फिर 3-4 लोग कुछ बात करने लगे आपस में, तो मैं समझ जाता था अभी कोई सुन नहीं रहा है बंद कर दो। ये सर प्रॉब्लम आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा सर। हमें जब कॉर्पोरेट शो के लिए बुलाते सर, बार एक बार खुल जाए, बार या अगर डिनर खुल गया तो पता नहीं ये लोग खाने से कंपटीशन नहीं है सर कमेडी, खाने और ड्रिंक से कोई कंप्रोमाइज भी नहीं। तो आपको हंसना है कि खाना है। आपने सर पार्लियामेंट में परफॉर्म किया? पार्लियामेंट में यार एक बार कहीं से आया था बुलावा, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। वहाँ नहीं किया, और पाकिस्तान से कई बार इनविटेशन आया, वहाँ नहीं जा पाया, या तो डेट क्लैश हो गई या मैं टाल गया। ऊप पटांग अगर मैं कुछ और एक्सपीरियंस याद करूँ तो वेस्ट इंडीज में शो था, परफॉर्म कर रहा हूँ और लोग क्लैप कर रहे हैं और ताली वाली बजी, बाद में कद वही काले मिलने आए। काले मतलब हैं वो इंडियन ही, लेकिन कई जनरेशन से हैं तो अब वो लगभग मिक्स हो गए हैं। तो वो आके बोले वेरी वेरी गुड, अच्छा था, अच्छा गुड, वेरी गुड, अच्छा, हम इंजॉय हम इंजॉय। तो मैंने बोला आप ये सब जोक वगैरह समझ पाए? नो नो नो, अंडरस्टैंड नो,
आवाज थोड़ा थोड़ा बच्चन, थोड़ा थोड़ा आवाज, गुड गुड, एंजॉय। तो फिर मैंने कहा अगले शो में थोड़ा सा और मैं होमवर्क कर लूँ। तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ लोकल मैं किसी को पकड़ लेता हूँ, कोई रेडियो स्टेशन का बंदा मिल गया, कोई यूपी का मिल गया, दिल्ली का मिल गया, जहाँ उसने अरे आपको मैं टीवी पे देखता हूँ बहुत मजा आता है, आपके मैंने टेप बहुत सुनी है, रेडियो पे बहुत सुना, मैं आ जा भाई होटल में आ जा होटल में आ जा तू, पहले तो मेरे साथ खाना खा ले, जरा खाना खा ले। खाते खाते फिर उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं अपने कुछ जोक ट्रायल ले रहा हूँ। वो सोचता है कि यार ये आदमी कितना मुझे अटेंशन दे रहा है। बोले हम तो इससे मिलने के लिए हमने टिकट लिया था और हमें तो नहीं पता कि ये मतलब ये मुफ्त में कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, उसको मालूम नहीं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सर, हमारे पे लाइव जो कर रहे हो हमें पता नहीं। लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ समटाइम जान के सुन के, हालांकि आप भी इस फील्ड में आप भी इस चीज़ को जानते ही हैं, पहले तो उसे मौका चाहिए कि मैंने कोई जोक सुनाया, कोई सुने, ताली बजे, रिस्पॉन्स हो, किसी ने ऑटोग्राफ ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। सब तड़पते हैं इसके लिए। फिर धीरे धीरे ये खूब मिलने लगती है। जहाँ जाता है वहीं लोग फरमाइश करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जहाँ बैठा नहीं कि अरे वो वाला सुनाओ यार, वो गजोदर, अरे बहुत परेशान हो जाते हो, गजोदर वाला सुनाओ, अच्छा वो गब्बर वाला सुनाओ, वो भैया ट्रेन में जा रहा है वो सुनाओ, दुबई में गया वो सुनाओ, गब्बर बूढ़ा हो गया, शादी में खाना कैसे सुनाओ, वगैरह वगैरह। तो फिर अब बचना शुरू करते हैं। जिसने बुलाया पार्टी में से बोलता है यार तूने मेरे को क्या बुक किया है क्या? तू दोस्ती में बुलाया यार, मैं भी सबकी तरह मैं भी खाना खाने आया हूँ, अब तुम्हारे घर वालों ने मुझे काम पे लगा दिया यार। तो बोलता कौन है मैं मना करता हूँ, हाँ नहीं है मेरा दोस्त है, परफॉर्म के लिए थोड़ी आया यार, ये दोस्त है, लेकिन यार ये जो मेरी दादी है ये तेरी बड़ी फैन है। अब वहाँ हम बचना चाहते हैं। अब कितनी पार्टीज में सब एंजॉय कर रहे हैं, सब किसी ने डीजे लगा दिया, सब डांस भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैं हल्का हल्का डांस कर रहा हूँ और चेहरे पे थोड़ा टेंशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी बीच में डीजे रोक के बोलेगा और दोस्तों हमारे बीच राजू श्रीवास्तव हैं तो ये कम से कम वो फला वाला आइटम तो जरूर सुनाएंगे। तो अब मैं हल्का हल्का डांस भी कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसा अनाउंस कर दिया तो मैं कौन सा सुनाऊंगा। तो ज़्यादातर पार्टियाँ और इस तरह शादी हम कई बार एंजॉय नहीं कर पाते। अभी हमारे घर में ही शादी थी, मतलब हमारे चाचा के यहाँ, और मैं मुंबई से ख़ास तौर से गया। मुझे सब याद आ गया बचपन, अरे वहाँ बुआ मिलेंगी, वहाँ मिलेंगी, बड़ी वाली भाभी मिलेंगी, सबसे बैठेंगे, खूब बतियाएंगे, बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ ऐसे करके। और जैसे मैं पहुँचा और वहाँ चाचा के पैर छुए, चाचा बोलते हैं अरे हाँ राजू अच्छा तुम आ गए, ठीक है, अच्छा शाम को तुम्हें जहाँ प्रोग्राम देना है वो अपना स्टेज वगैरह देख लो कैसा है, माइक वगैरह चेक कर लो, और तुम्हारे प्रोग्राम का है वो हमने शादी कार्ड में छाप दिया है। अब उन लोगों का कहना है कि भाई सब लोग इस तरह से करते हैं, हम तो घर के हैं, हमारा तो बनता है, तो क्यों नहीं। अब हम ज़रूर इन चीज़ों को भले आज चिढ़ के बता रहे हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर परेशान होंगे। अभी मेरे डैडी एडमिट थे हॉस्पिटल में। अब वो नर्सें क्या कह रही हैं, जो नर्स, और डैडी की हालत बड़ी ख़राब थी, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब उनको ओटी में लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। एक नर्स आई, अरे चलो अच्छा हुआ आपके पापा बीमार हुए तो इसी बहाने आपको देख लिया, नहीं तो फिर यहाँ कहाँ आप लेके आते, मतलब अभी आप भैया बहुत अच्छा हुआ जो आप इसी अस्पताल में आए, नहीं तो आप तो बम्बई ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, तो चलो ऐसा हुआ तो सब मेल मुलाकात हो गई, नहीं तो टीवी पे देखते थे, अब इसी बहाने आज जिंदा देख लिया। अब दिस इज़ ब्लैक ह्यूमर, लेकिन ये सोच के देखो कि जब ऐसा नहीं होगा तब कितना ख़राब लगेगा। सर तो आपने आप खुद बोल रहे हैं आपने स्टार्ट करा मिमिक्री करने से, आपने खुद कोई कॉन्शियसली डिसीजन लिया था कि मैं मिमिक्री से ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर करूंगा या दूसरे टाइप का ह्यूमर करूंगा? आपने कुछ कॉन्शियसली डिसीजन लिया था कि कैसे कुछ शिफ्ट आया आपने में, कैसे हुआ था? नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि ये कोई काम हो सकता है या ये प्रोफेशन है या दुनिया में इतनी डिमांड है, या ये करने वाले लोग बाहर तो बाप रे वो शायद फिल्मों को भी कुछ नहीं समझते, है ना। और खैर टचवुड अपने इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि मैं तो बल्कि तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमारे मित्र हैं सबको बुलाता हूँ और अपने यहाँ चाय वाय बुलाता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि फिल्में मत करो,
डोंट डू फिल्म्स, क्योंकि ये जो हंसने हंसाने की दुनिया अभी इंडिया में डेवलप हुई है, ये बहुत मुश्किल से हुई है। हाँ, अब उसे डाइल्यूट हाँ, वो ऐसा ना हो कि तुम लोग सिर्फ मेकअप लगाने के चक्कर में या बड़े पर्दे में दिखने के चक्कर में इसको बीच में छोड़ दो। ये कोई बेचारी नहीं है कि हाँ, नहीं बेचारी नहीं, कुछ लोग जैसे पूछते हैं हाँ भैया तो स्टैंड अप वगैरह तो आपके देखते रहते और फिल्मों में कब आ रहे हो? तो हम तो मैं बोलता हूँ कि आप फिल्म वालों से भी तो कहिए कि फिल्म बहुत देख लिया, अब स्टैंड अप में कब आ रहे हो? ये हमने कही कोई छोटी चीज नहीं। क्या आपने सोचा इसको कुछ साल करना चाहिए, 5 साल करना चाहिए, 7 years करना चाहिए? इसको होल लाइफ कीजिए ना। क्योंकि सर इंडिया में तो वही है, जब तक आप फिल्मों में नहीं दिखाई देंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं। लेकिन वो टूट रहा है। वो इसलिए टूट रहा है कि फिल्म वाले खुद ही आ रहे हैं इसमें टीवी पे, और सत्यमेव जयते लेके आमिर खान आते हैं, शाहरुख खान भी अपना शो लेके आते हैं, बच्चन केबीसी लेके करते हैं, सलमान अपना 10 कदम करते हैं। तो अब ना फिल्म बड़ी है, ना टीवी बड़ा है, ना स्टेज बड़ा है। आप किसी भी चीज में अपने आप को मनवा लें, लोगों के दिलों में जगह बना लें, वही मीडियम बड़ा है। नहीं, पहले मुझे याद है कि जब किसी हम लोग फीलर्स की तरह हमें ले जाया जाता था, हमारा मेन शो नहीं होता था, मेन शो किसी सिंगर का होता था और उसमें हम फिलर के लिए आते थे। हमें बाकायदा ऐसा हमने सुना भी, कहते हैं कि अरे यार वो आशा जी हैं शो में, आशा भोसले जी, तो लगातार कितने गाने गाएंगी, तो बीच में तो उनकी साड़ी भी चेंज वो करती हैं, एक चाय भी पीती हैं, तो क्या करें? अरे बोले एक मिमिक्री वाले को ले लेते हैं, वो बीच में खड़ा कर देंगे, 2-4 जोक सुनाएगा। इस तरह से मुंह पे इतना कह के बुक कर देते हैं। हाँ, कि एक्चुअली हमारे यहाँ वो सिंगर तो वो हैं, हाँ, जो खुद ही बोल रहा है, मेरे मुंह पे बोल रहा है कि सिंगर तो हमने कर लिया, मेन शो उन्हीं का है, तो हम चाहते हैं वो थक ना जाए, तो आप आ जाइए बीच में 2-4 जोक सुना दीजिए, और फिर आप भी बैठ के बाद में गाने सुनिएगा। अभी वो मिलता है सर, हम जो नए कम्युनिटी बोलते हैं कि आप अगर कर दीजिए, चलो आपका भी एक्सपोजर हो जाएगा। हाँ, आपका एक्सपोजर हो जाएगा, लोग आपको देख लेंगे, गलती से आप दिख गए। हाँ, अच्छा, मुझे याद है षणमुखानंद हॉल में बैठा हुआ था ऑडियंस में, और पुराने मिमिक्री आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, मेरे से भी सीनियर हैं, माधव मोके हुए एक पुराने हुए हैं, जॉनी विस्की एक हुए हैं, जॉनी लीवर से भी पहले, तो 50 साल पहले वो करते थे। तो जब अनाउंस होता था कि दोस्तों गाने तो आपने काफ़ी सुन लिए, अब चलते हैं थोड़ा सा मिमिक्री की तरफ, हंसने हंसाने की तरफ, तो मैं ऑडियंस में बैठा था, ऑडियंस में लोग कहते हैं कि चलें बाथरूम वगैरह हुआ है, तो बोले क्यों? अभी तो कुछ मिमिक्री वगैरह होगी ना, तो बाहर कुछ खा आते हैं, जब मेन शो होगा तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे थी, तो मैंने ऐसा नहीं है सर, अब ऐसा नहीं है, नहीं, अब तो मैं और कुछ बोल रहा हूँ, अब तो फिलर्स के लिए हम सिंगर्स ले जाते हैं। तो हमारे जो भी शोज हो रहे हैं या मेरे दोस्तों के, तो अब क्राउड जो आ रहा है वो कॉमेडी देखने आ रहा है, और वो पूरी देर देखता है और हंसता है, और बीच में हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब एक चाय पी लें। तो एक सिंगर वहाँ पे होता है। हाँ, तो बात हम एकदम शुरू से पे आपने पूछा था कैसे शौक हुआ वगैरह, तो हमें तो मालूम नहीं था कोई प्रोफेशन है, तो धीरे धीरे लोग बच्चन का कुछ किया, लोग खुश होते गए, और जहाँ बुला ले जाते थे चले जाते थे, हमें मालूम नहीं था कि इसमें पैसे भी मिलते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम हम तो वहाँ कानपुर में जब कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता था तो पास वास तो होते नहीं थे, तो पीछे तंबू वम्बू जहाँ फटा है, हाँ, कनात जहाँ फटी हुई वहाँ से मुंडी घुसेड़ के शो देखते थे। तो एक बार ऐसे कोई शो में था, तो बाद में पता चला कि वो जो उनका अनाउंसर मिमिक्री आर्टिस्ट आने वाला था, तो उसका इंतज़ार हो रहा है। हाँ, तो हमने कहा अच्छा। तब कानपुर में एक होते थे कोई, वो भी श्रीवास्तव थे, मधु श्रीवास्तव, उनका इंतज़ार हो रहा है। हाँ, और ऑडियंस बैठी हुई है, और मैं भी मतलब उसको देखना चाहता था, यार ये कैसे होते हैं ये लोग, जिनका नाम होता है वो कैसे दिखते हैं। हाँ, तो थोड़ी देर वो कबीर का हिसाब है ना, वो विपाशा संडास, हाँ वही वाला हिसाब हो गया। थोड़ी देर में एक आदमी रिक्शे से आया, और पूरा ऐसा रिक्शे में ऐसा आधा लटका हुआ है। तो रिक्शे वाले ने बोला, ये बाबूजी हैं, कहन हमें बोले चलो बोले, आप बोल नहीं पा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये कहें कि वहाँ जहाँ बत्ती लगी है, जहाँ खूब बत्ती लगी वहाँ ले चलो, तो वहाँ ले आया। तो वो पूरा शराब पिए हुए थे, मस्त दारू पी रखी थी। खैर ऑर्गेनाइजर ने बोला कि इनको तो मंच पे ले नहीं जाना है। पीछे मैं खड़ा था, चांस वाला खड़ा था। तो मुंडी मैंने आगे की, हमने कहा मौका दीजिए लाइक दिस। तो फिर मैंने
उस शो को कंपेयर किया। हाँ, कंपेयर किया तो जब शो ख़त्म हो तो उस आदमी ने मेरी जेब में 50 रुपये डाल दिया। तो मैंने सोचा अच्छा इसने रखने के लिए दिया होगा, क्योंकि ये शो थोड़ा दूर हो रहा है शहर से, तो रात में लौटना है ना। तो रात में लौटना है तो एक जगह पैसे ना रखो, कई जगह बांट दो फिर ले लेना। तो पैसे कैसे मिल सकते हाँ, मैं बोला पैसे कैसे मिल सकते हैं, उल्टा इसने हमसे लिए नहीं। मुझे ऑडियंस दी, इतने लोगों ने ताली बजाई, जो मुझे शौक था वो वैसा मंच दिया और रिस्पांस मिला, तो बहुत मेहरबानी कि इसने पैसे मांगे नहीं। तो जब वो उसने घर पे छोड़ा मुझे रात को 1:30 बजे, तो हमने कहा लो भैया चलो आगे बहुत, और ये अपना 50 रुपया लो। मैंने उसको वापस किया कि रखने को दिए थे जो। बोले नहीं ये तुम्हारे लिए। हमने किस लिए? बोले अभी जो तुमने किया है ये उसकी फीस है। हमने कहा इसमें फीस होती है क्या? हाँ फीस। दूसरे दिन तो मैं अपनी मदर के सामने बैठा था बड़े मजे से, चौकी डाल के अखबार पढ़ रहा था कि 50 रुपए। हाँ, तो हम कहा अम्मा तुम बोलती हो ना कि तुम्हारी सब किताबें में बहुत खर्चा हो रहा है किताब कॉपी में, और खुद कमाइयो तो पता चली, और जो बाप की कमाई जो तुम बर्बाद कर रहे हो। तो हाँ कहा हाँ तो क्या हुआ? हमने कहा अब किताब हम खुद ही ले लेंगे, और पता नहीं लेना पड़ेगा भी कि नहीं अब। तो इस तरह से आया। लेकिन अब उस समय मुझे जूनियर अमिताभ करके लोग पेश करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। उनके सामने पहली बार कब परफॉर्म किया? हाँ, इसको कंप्लीट कर। हाँ, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। ये एक आइटम है, आइटम पेश हमारे सामने। इट्स लाइक आइटम बोलने ना सर, बोलिए ऐसे करता है, ऐसा करता है। ये कितने मिनट में करता है। सो फिर इस तरह से जूनियर अमिताभ बोले मुझे, और मैं खुश, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, हमने कहा अच्छा ही लग रहा है। हाँ, जो कुछ ना कर रहा हो उसको अच्छा ही लग रहा होगा। फिर मैं लेकिन खुद से मेरे समझ में आ गया एक दिन कि आपने कहा यार दूसरे की मिमिक्री करके या एक आवाज़ निकाल के मुझे लोग कितने दिन सुनेंगे। एक टाइम के बाद जैसे मैं मंच पे आऊँगा लोग बोलेंगे अभी देखना दीवार का सुनाएगा, अभी देखना रंग बरसे भीगे चुनर वाली सुनाएगा। तो फिर पता नहीं कहाँ से और कैसे मैंने सोचा होगा कि मैंने जो शोले फिल्म देखी थी और रियल में जो मैंने महसूस किया था अंदर, तो वही मैंने एक शो में सुना दिया कि एक आदमी पहली बार सिनेमा हॉल में जाता है, टिकट कैसे लेता है और कैसे अंदर घुसता है, और उसने शोले को क्या समझा, ये मैंने कहीं सुना दिया। और हंस के गिर गए लोग। क्या था सर इसमें जो क्या था? हाँ, उसका एक बीच का एक पंच बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो ये बैठा होता है, बोलता है कि बैजनाथ, संकठा, छुट्टन भैया, पुत्तन को बुलाओ। कल भैया हम एक सिनेमा देखा है और हम बैठे रहे अंदर, ऐसा खूबसूरत छोकरी दिखाया है, बसंती नाम धरे रही, बसंती घोड़वा बैठी है, समझा यादव जी? बसंती घोड़वा बैठी है और घोड़वा दौड़ा रहे, कट कट घोड़ा दौड़ा रहे। हम घबरा गए, हमका भागो कि घोड़ा निकल के कुर्सी में ना आ जाए। कहा एकदम हमारे मुंह पे चढ़ावत रहा तो कुर्सी में ना आ जाए। तो हमारे बाजू में बैठे रहे बैजनाथ, कहे चुप बैठो, ये सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ा तो नहीं मालूम सनीमा है। लेकिन शोले में वो बच्चन वो मस्त काम किए हैं, अपने इलाहाबाद के हैं बच्चन के, जो उनके पिताजी नहीं कवि रहे, किताबन में जो रहे, उनके लड़का है बच्चन का नाम है, पहला नाम अमिताभ, तो जय नाम रखे रहे। शोले में बहुत अच्छा काम, लंबे हैं, लंबे बहुत हैं। उनकी औरतिया जो है थोड़ी नटुल्ली है, थोड़ी छोटी है, मतलब टैया ठस है। हाँ, तो वैसा वो रही, तो दोनों का अच्छा भाई चक्कर दिखाया रहा। वही बत्ती बुझाती रही, पुराना मकान का दिखाया हुआ, ठाकुर की मतलब बहुरिया रही हैं, तो ये बत्ती बुझाती रही और ये कोने से बाजा बजाते रहे। तो दोनों जन लगे रहे, हम कहा लगे रहो, हम सब भैया लोग तुम्हारे साथ हैं। खेला अच्छा दिखाया है। रमेश सिपुआ दिमाग लगाया है और आर.डी. बरनोना बाजा बजाया है, लता बहन जी गाना गाई हैं और पैसा कौन लगाया, हमें क्या करना है।
तो ऐसा करके फिर उसमें सबकी एंट्री थी, ये करते करते तो ये मेरा आइटम एक ऐसा हो गया था जो किसी की मिमिक्री नहीं थी। बिल्कुल। ये बता रहा था कि फर्स्ट ये बता रहा था कि ही इज ए राजू श्रीवास्तव, मतलब अमिताभ का कर रहे थे तो जाहिर है तालियां हमें उनकी वजह से मिल रही थी, ये जब कर रहे थे तो ये मेरी वजह से मिल रही थी। तो इस तरह से फिर सर गजोदर कौन है सर? गजोदर यार हमारे ननिहाल में एक हाँ ननिहाल में एक नाई था। तो हम लोग छोटे छोटे थे और वैसे हम शहर में रहे कानपुर में सिटी में, लेकिन छुट्टी जब होती थी स्कूल की 2 महीने की छुट्टी होती थी तो वो 2 महीने के लिए हम लोग ननिहाल जाते थे नानी के गांव। तो हमारे जो मामा है, अब जाहिर है उनका दोस्त है, तो मामा के दोस्त भी मामा, बिल्कुल हाँ ना, तो हम लोग मामा ही कहते थे उनको, गजोदर मामा। तो ये बाल बड़े नाना देखते थे, बाल बहुत बड़े हैं, हीरो बने हैं, जाओ गजोदर बुला लाओ, कल सबके बाल कटें। अब हम सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं, तो वो मुझे याद इसलिए रहा गजोदर, हमारे गजोदर मामा, बिकॉज वो पहले तो आए हैं बाल काटने और लेके क्या आए हैं, बाल्टी बाल्टी, दरी, लोटा, डब्बा, चद्दर, रजाई, हाँ, और बैलगाड़ी से आए हैं। पहले उन्होंने बैलगाड़ी खड़ी की, बैल निकाले, बैलों को चारा, जो हम लोग के जो बैल थे उसमें घुसेड़ दिया उनको, जहाँ हमारे बैल बनते हैं तो वहाँ बांध दिया, उनका चारा वहाँ खा कर दिया, बैलगाड़ी किनारे की। और पहले तो नाना के मालिश कर रहे हैं नाना हमारे, हम लोग कहेंगे बाल कटेंगे, हम लोग बैठ गए सीधे से बाल गीले करके। वो कह रहे थे बाल गीले कर लो, मतलब बाल गीले मतलब अब तुम्हारा नंबर है अब बाल गीले करके बैठे हैं, इधर उधर गप्पे चल रही हैं, उनका तमाकू हुक्का चल रहा है। होते होते आए और मेरे भाई का काटा और हमारे लिए बोले कि अब तुम्हारा काटेंगे शाम को और फिर वो वहाँ लेट गए, अंदर से आम आए, आम खाया, उन्होंने खाना खाया, अपना सो रहे हैं। और वहीं कुएं से नहाया, धोती सूख रही उनकी और खाली लंगोटा पहने बैठे हुए हैं। अब लंगोटा पहने बैठे होते तो उस तरफ से भी लेडीज नहीं निकलती थी तो फिर मेरा नंबर काटने का आता था 7 बजे रात शाम को। फिर वो और काटते काटते कहानियां पूरे गांव की, वहाँ पे उनके यहाँ नई बैलगाड़ी आ गई है, उनके यहाँ दूरदर्शन आने लगा है, हाँ पॉलिटिक्स, और ये फलानी की लड़की भाग गई है सब बताते, तो बड़ा सुनने मजा आता था। तो जब हम बॉम्बे आए तो जोक में कैरेक्टर चाहिए था, तो एकदम से कहीं गजोदर मेरे मुंह से निकला और वही अच्छा लग गया और गजोदर बोलने लगा मैं। आपके सर फैन भी भयानक होते होंगे? बिल्कुल अब देखिए फैंस को हम लोग कहीं मिले थे तो शाहरुख और ऐसे तमाम जो लोग हैं जो आज बहुत बड़ी पोजीशन में है, सबका ये कहना है कि यार फैंस को हमें अच्छा ही बोलना है, मतलब उनको ये नहीं बताना है कल बड़े परेशान हो गए, कल उन्होंने फैंस ने बहुत तंग किया। लेकिन मैं एक आध बता देता हूँ क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है ना, मेरे साथ अगर सलमान है एयरपोर्ट पे तो सलमान को डिसेंटली मिल रहे हैं क्योंकि हीरो है। हाय सलमान, हाउ आर यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये करके उसने हाथ मिलाया, ओके बाय। अब चाहे उसकी बॉडी से डरते हैं या उसकी प्रेजेंस है कि इतने करोड़ लेता है ना, उसकी फिल्म मतलब 100 करोड़ धंधा करती है, तो ढंग से बात किया, अच्छे से फोटो किया। अब पीछे खड़ा हूँ मैं सूट के, मेरे एकदम चढ़ गया वो सरदार जी, मेरे ऊपर चढ़ गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो गुरु, गजोदर भैया, और वो पटंग वर्ड भी यूज कर रहे हैं, तुम साले बहुत अच्छा करते हो, तुम अच्छा ये तारीफ है उनकी, ये तारीफ कर रहे हैं, तुम गुरु जितनी हरामीपन करते हो ना, मजा आता है गुरु, और मजा आता है। अबे ये सब चूतियापंथी कहाँ से लाते हो
कॉम्प्लीमेंट है दुकान से खरीद के लाते हैं जैसे वो है। फिर सर आपने कभी सर बच्चन साहब के सामने किया हुआ है जूनियर हाँ जूनियर बच्चन इन फ्रंट ऑफ एक्चुअल बच्चन? आया पहले तो शुरू में जब हम मुंबई आए तो फिल्म उनकी बन रही थी, ये मैं आज़ाद हूँ मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाया, सिक्योरिटी थी, ये था वो था। फिर शहंशाह, किसी ने बताया शहंशाह की शूटिंग हो रही है, वहाँ में घुस आके किसी तरह से वो टीनू आनंद को रिक्वेस्ट कर लिया, टीनू आनंद से कोई एक पहचान निकाल ली मैंने। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव हैं जो अमिताभ बच्चन के रिलेटिव हैं। तो इस तरह से हम वैसे तो रिलेटिव हैं। ये कल विकिपीडिया पे डल जाएगा। अभी इज श्रीवास्तव ना, अमिताभ इज श्रीवास्तव। तो हमारे जो रिलेटिव थे वो उनके रिलेटिव हैं, तो इस तरह से हैं हम रिलेशन में, लेकिन हम मिले नहीं थे कभी। तो दूर हम दूर के दूर होते ना, दूर का सगा भाई वैसा। अभी तो स्टार बनना ही था। तो वही वो वाला जोक याद है ना, बोले मेरा दूर का सगा भाई है। मालूम है ना? बोले क्यों? बोले हम लोग 6 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा है, हम दोनों के बीच में दूरी बहुत है। दूसरे मिले तो जो भी डायलॉग कर रहे हो, मैं तो उनको लगा कि मुझे लगा कि यही एक मौका है, सारी बात बता दो, नहीं तो एक बार शॉट रेडी हुआ या वो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं वो हटा देंगे। तो दादा नमस्ते, दादा प्रणाम, दादा मैं भी श्रीवास्तव हूँ और दादा मैं भी यूपी का हूँ, दादा आपको बहुत फॉलो करता हूँ और अब आपकी एक फिल्म देखी, ये देखी, इतनी बार देखी, उतनी बार मैं आपकी आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, अभी वो भी कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, और आपके सब डायलॉग मुझे याद है, ये क्या। इतने में उस सिक्योरिटी वाला बोलता है, हाँ हो गया, अभी हो गया। तो मैं फिर हट गया और वो मुझे अभी मैं ऑडियो में कैसा, मुझे बस खाली ऐसे देख रहे थे। जब मैं सब बोल रहा था तब भी वो आसमान में देख रहे थे सर। वो लंबे लोगों की आदत होती है सर आसमान। तो मैं अब मेरे समझ आ रहा है, एक्चुअली सुन नहीं रहे थे और मैं भी डायलॉग याद कर रहे होंगे। सर जब आप उसको उनके बाद मिले, आपने उनको कभी स्टोरी बताई है? मैं छोटा तो कई बार मिलता रहा कि छू के हट गया, वैसे करके हट गया, लाइक दिस। जैसे होली उनके यहाँ बड़ी मशहूर थी, अभी कुछ साल से नहीं हो पा रही। तो जॉनी लीवर और सचिन क्रिकेटर नहीं है अपने, सचिन पिलगांव का, हाँ, ये सब लोग लेके उनके बंगले गए और वहाँ सब भांग चल रही थी, वो पूरा रंगबड़ से बैंड लगा हुआ था, वो भांगड़ा वाले थे सब। उनकी माता जी, मैं बड़ा हैरान, वो 2-2 रुपये लुटा रही थी, दिस फैक्ट। खैर पुराने लोगों को आज भी 2 रुपये 5 रुपये बहुत लगते हैं। काफी प्रोड्यूसर से मिले जिन्होंने फीस ऑफर करी। तो वहाँ कल्याण जी आनंद जी मुझे सुन चुके थे। कल्याण जी आनंद जी बोला कि अभी तुम्हारा यहाँ पे सिटिंग करते हैं, कुछ डायलॉग वालॉग रेडी रखो, एक यहाँ महफिल लगाते हैं अपन। हाँ ठीक है। जब वो बोलना चाहें तब पता चला बीच में अनिल कपूर आ गए, फिर डांस शुरू हो गया। फिर कल्याण जी भाई ने कुछ बोला अमिताभ को कि भाई ये जो लड़का है ये, अच्छा ऐसा किया, हाँ सुनते हैं। फिर पता चला, फिर हुड़दंग शुरू हो गया, फिर भांगड़ा शुरू हो गया, फिर और कोलीवाड़ा के सब सरदार घुस गए, वो लेके ढोल ताशे लेके बंगले में होता रहा। फिर खैर तब तक कि सचिन वगैरह बोले कि यार यहाँ कर लिया अपन, अब दूसरे मंडली में चलते हैं। तब लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सराफ ने वो अलग रंग घोल के बैठे थे, वो लोग वेट कर रहे थे, अभी तुम सब प्रतीक्षा में हो यार, यहाँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर वहाँ चले गए, तो मिलना होता था, ऐसा हो जाता था। एक बार मैं षणमुखानंद परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सामने से एंट्री ले रहे हैं चीफ गेस्ट, तो अब मैं अकेला रह गया, सब उस तरफ देख रहे हैं, ऑडियंस की सबकी पीठ मेरी तरफ हो गई। तो उन्होंने देखा भी कि ये प्रॉब्लम है, तो बड़े मुझसे दूर से ऐसे हाथ ऐसा कुछ किया कि मतलब सॉरी, हाँ ऐसा हुआ, लाइक दिस सब होता रहा। फिर एक दिन मुझे मिल गए वहाँ औरंगाबाद में कोई शो था, मैं भी बैठा हुआ था, तो दूर हम ऐसे डरे से बैठे हुए थे। तो ऐसे इशारा किया, बुलाया, बोले भाई आप तो कमाल करते हैं, आपको हम रोज़ देखते हैं, और जो ये लापचंद की बात है, हाँ, और आप जो ये है और इतने डिटेल वर्क है आपका, और
ये ऑब्जर्वेशन कब से कर रहे हैं, कैसे है? तो फिर मैंने सब बताया उनको। बोले वो तो मैं रात में घर पहुंचता हूँ और रिमोट लेके आपको ढूंढता रहता हूँ, तो वगैरह वगैरह। फिर हाँ, फिर उसके बाद फिर उनके बर्थडे में फिर मैं जाने लगा, उनके बर्थडे में जाती हूँ। अब वो ही ज़्यादा बोलते हैं, मैं चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहता हूँ। तो अब अभिषेक से बोले कि अरे इनको जानते हो, ये देखा करो, ये ऐसे लाइक दिस, ये नकल उतारते हैं। तो इनका शो आता है इतने बजे, यू मस्ट सी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से फिर उसके बाद फिर मैं कहीं मुलाकात, फिर तो इसमें मिले, बिग बॉस होस्ट कर रहे थे। तो इस तरह से बिग बॉस कैसा था सर, एक्सपीरियंस आपको? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर भी था। मुझे ये लगता था कि यार पुराने ज़माने में हमारा क्लियर हुए कि नहीं सर बिग बॉस? नहीं क्लियर क्योंकि बाकी वाले इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बाकी वाले चैनल्स वगैरह बंद हो रहे हैं ना। हाँ नहीं भी कलर्स तो चल रहा है अभी। तो मुझे लगता था कि यार हमारे ग्रैंडफादर और ये सब लोग बगैर टीवी के कैसे रहते थे। टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, और फिर पूरा दिन कैसे निकालते थे। आज तो अगर मोबाइल ना हो तो बड़े परेशान हो जाएंगे। हाँ, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों मोबाइल से, सेल से, और ये मीटिंग से, अपॉइंटमेंट से, और ट्रैवलिंग से इतना थके हुए, तो मुझे ये सोच के बहुत मजा आया कि यार एक बंगले में रहना है, वो भी उसके लिए रहने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और रहने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने अंदर बहुत मस्ती की। मुझे कोई वो ना ग्रुप मैंने बनाया, ना मुझे वो टारगेट दिख रहा था, वो 1 करोड़ का जो प्राइज मनी था, क्योंकि मेरा जो वीकली था वही ठीक ठाक था। लेकिन सर एक बात बता दो सर आपको, जब लाफ्टर चैलेंज हुआ सर सीजन, एक तो सर आज अभी भी जिससे या पूछो सब कहते हैं सर लाफ्टर चैलेंज वगैरह अच्छा था। सीजन 1 सर, सीजन 1 बेस्ट सीजन था, बेस्ट। उसमें भी सर मैं दिल से बोलता हूं, मैं जब आई थिंक यू आल्सो मैच जब देख रहे थे, जब फाइनल हुआ, आई थिंक पूरी इंडिया में एक सडनली ये आ गया था कि ये थर्ड कैसे आ गए, इनको तो जीतना था, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे? मुझे लगता है चैनल ये इस तरह की लगता है शॉकिंग न्यूज या तो चाहता था कि हाँ, कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करा। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए बिग बॉस ऑल्सो लोग, जब मैं निकला तो सबको लगता था ये आदमी तो निकल ही नहीं सकता। एक्चुअली ऐसा जब शॉकिंग इस तरह डिसीजन होते हैं तो हम लोग उसकी बात तक करते रहते हैं। चैनल का एक फंडा ये भी है कि आप उसकी चर्चा नुक्कड़ पे करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं। कैसे अगर सब ठीक ठाक अगर जीत गया होता तो आप बात ही नहीं करते। एक वो भी लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा फंसा नहीं कि विनर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने मुझे विनर माना। एग्जैक्टली। सर एक और पर्सनल सवाल लाफ्टर चैलेंज के बारे, आपको सिद्धू जी को सर चांटा मारने का मन नहीं करता? क्योंकि जैसे हम अभी शो कर रहे होते हैं और आगे आदमी हंसी जा रहा है पागलों की तरह, अरे तुम जोक बोल लेते ना, चुप कर, एक तो पियर रखना। नहीं यार, सिद्धू अगर झूठा भी हंसते ना, सिद्धू अगर झूठा भी हंसते हैं, अर्चना पूरन सिंह झूठा भी हंसती है, तो उस वक्त परफॉर्म कर रहे आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है ना, और उसको एक अंदर से ताकत मिलती है। और कोई जोक अगर उसका थोड़ा ठंडा भी गया तो ये जोरदार हंस के उसको फील कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है आर्टिस्ट के लिए। और बहुत बार तो उनकी हंसी जहाँ कम हंसे हैं, लेकिन वो उठा के एडिट करके बड़ा वाला डाल देते हैं। लोग तो वैसे भी इन्हें पागल समझ रहे हैं, तो पूरा ही पागल बना दो, लगेगा कि इस पे हंस रहे उसी टाइप के। पर सर वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अब ये कंफर्म नहीं है मुझे, बट जैसे बहुत लोगों ने ये बोला था कि काफी कॉमेडियंस को ये था कि हम सेम लेवल पे क्यों आए, ये मैं 10-20 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपना सारा मटेरियल टीवी पे क्यों डालूं? अगर मैंने एक बार डाल दिया तो मैं फिर से कर नहीं पाऊंगा। जैसे हमें बहुत डर लगता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। जब मैंने पहले मेरे ऑडियो कैसेट बहुत आते थे, टी सीरीज से आया था 85 में। लेकिन वो सर आपको कभी डर नहीं लगा कि एक बार कैसेट? वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो 85 में आया ऑडियो कैसेट, हंसना मना है, तब चैनल्स तो थे नहीं, तो ऑडियो कैसेट बहुत चलते थे और वो कैसेट हिट भी हुआ था। तो मैं बड़ा अंदर अकुलाता था, अंदर वो होता था कि मैं जिस ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ उसमें मेरा कैसेट बज रहा है और वो मुझे जानता नहीं। अब टाइम पास के लिए मुझसे ऐसे पूछते थे कि ये क्या सुन रहे हो? अरे श्रीवास्तव है, सुनिए तो मजा आएगा। लेकिन क्या सुना रहा है? अरे हंसी का बात है, बहुत मजा आता है।
तो ये सब होता था। तो ऑडियो कैसेट काफ़ी आए। हाँ, तो जब पहली बार इस तरह का ऑफ़र आया तो हमारे एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो बोले यार नहीं, ये सब पूरा मटेरियल चला जाएगा और तुम एक कैसेट में रिकॉर्ड करके दे दोगे ऑडियंस को और लोग खरीद के अपने घर ले जाएंगे 20 रुपए में। उसके बाद जब तुम कभी शो करने जाओगे उनके मोहल्ले में तो क्या सुनाओगे? तुम जब सुनाना शुरू करोगे तो बोलेंगे ये तो मेरे घर पे रखा हुआ है पूरा, फिर तुम्हें बुलाने की जरूरत क्या थी, यही मैं यही नहीं लगा दूं स्पीकर लगा मंगा के। तो फिर मैंने कहा यार लेकिन तब तक एक कैसेट हिट हो चुका था जॉनी लीवर का, हंसी के हंगामे। हमने कहा यार कुछ भी है, एक जहाँ जॉनी लीवर नहीं पहुँच सकते थे वो कैसेट उस गांव में भी पहुँच गया। सही बात है, सही बात है। इसका एक दूसरा ये भी तो फायदा है। तो जब मेरा कैसेट निकला तो पता चला मैं अब यवतमाल कब जाता बताने की मुझे कॉमेडी आती है। यवतमाल से बाराबंकी से, ठीक है, यवतमाल बाराबंकी और सतना और उज्जैन, वहाँ से लोग मुझे आते थे शो बुक करने के लिए, अपनी ऑर्केस्ट्रा में लेने के लिए। तो अगर मैं अपनी चीज़ों को ऐसे बचा के रखता तो एक तो वो ना आता। और फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ में मैं इनकी नकल करता हूँ, सब अपने वॉचमैन की करता हूँ, गजोदर की करता हूँ, टैक्सी वाले की, भाजी वाले की नकल करता हूँ। एक्चुअली इन लोगों का एहसान है अपने ऊपर, हम इनकी नकल करके कमाते हैं देखा जाए तो। हमने इनसे कुछ लिया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। तो देखिए ये छोटा आदमी भी आपके लाइफ में कितनी हेल्प कर सकता है। आशा भोसले का ड्राइवर, वो गांव का सीधा साधा बंदा था। अब उसको क्लासिकल और राग और रागनी गज़ल समझ में नहीं आता है, वो एक कैसेट ला के गाड़ी में सुन रहा था, मेरा वाला हंसना बनाया। वहाँ से मुझे उन्होंने पसंद किया, मैडम ने, ये कौन है? बोले ये क्या है? अच्छा जोक्स, इसके कैसेट भी आते हैं क्या? इसके भी कैसेट बनते हैं, सुनाओ जरा, वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा किसकी कैसेट है? अच्छा टी सीरीज निकाली, ओहो अच्छा। इस तरह से फिर उस ग्रुप में बुलाया गया। वहाँ से भी कल्याण जी आनंद जी के यहाँ टीम में चला गया। तो कल्याण जी भाई के यहाँ जॉनी लीवर फिक्स थे मिमिक्री के लिए। तो लेकिन उन्होंने नाम मेरा लिख लिया क्लैश के लिए कि कभी अगर जॉनी लीवर को प्रॉब्लम हुई तो बुला सकते हैं। तो उनके रिप्लेस में कभी वहाँ चला, रिप्लेस में गया तो वहाँ तो लोगों को मज़ा आ गया। तो उन्होंने कहा कि जॉनी लीवर रहें तब भी तुम आया करो। All right, folks, that was our episode for today. Good fun, that was good fun. Good fun. I hope for you guys as well, because it was cool for us. So come about, we're going to come back with episode 2, part 2 of our interview with Raju, which will have a lot more other segments and will include the interview. We'll include the interview, of course. We plan to have more guests on the show. Yeah. So if you guys have any suggestions of who you would like, it doesn't necessarily have to be a comedian. The whole idea of doing Bakchod initially was to just explore the world of comedy. So anybody in the world of comedy who you think will be fun to talk to, or entertainment in general, perhaps, yeah, just send us, or just someone who will be good to do some Bakchod with, in short. Just send us an email at allindiabakchod@gmail.com. Poonam Pandey. So another big development on the podcast front, we have now come out with All India Bakchod t-shirts. Yes, they are quite cool. A lot of the head turners. Now the problem with the podcast is, Khamba, it's called All India Bakchod. Yeah. Which means no sponsor, or sponsors aren't very easily willing to come on board to pay us money. Yeah. In fact, nothing. If the only time sponsors have come to us and offered us money, which has happened a fair number of times, we've ourselves turned around and said no, because when a sponsor comes on board, it usually means curbing of our natural instincts and content. Just curbing content. Just curbing content, which we are not willing to do. We still want to talk about the things that we talk about and say the things that we say without anybody telling us not to. Yeah. So we thought that the best way to still sustain and run this podcast, because trust us, it has been rather expensive to get this, keeping it, running this, and just the amount of time that goes in, and to make it worth our time. We have come out with a line of t-shirts.
So please buy one. It's reasonable. It's $499. It's the first one is Being Gandu T-shirt, which has been made in the same font as the Being Human T-shirt, and it has the AIB logo on the back. You can buy it at www.redwolf.in/Bakchod, be small and not capital. So buy it, please. Buy it and support the podcast. उसमें से भी हमारा कुछ 20 रुपए का margin है. We are literally making next to no money, but the hope is we make enough money at some point to at least break even. Did you know the New York Times is now fully reader funded and not advertising funded? Oh fuck, that's amazing. It's awesome how I just compared us to the New York Times. Yeah. Buy the fucking t-shirt, okay? Just buy the shit. Just buy the shit. Yeah. Also, one more amazing thing that happened last month. Again, money spent from our own pockets to do this. We did the AIB live episode that happened at Fun Republic in Andheri. Yeah. The best part about this was the first time that we got to meet people who listen to the podcast face to face and in such large numbers, which was amazing. Which was amazing to have 150 engineering virgins in the audience to come listen. All guys, and not a single vagina in that room. It was rather sad. No, actually, I saw some chicks. They were, but they didn't have vaginas. I'm pretty sure they. Buy the t-shirt, ladies and gentlemen. So it was cool. So the live episode will be out hopefully soon. Yeah. We're taking a while with it because it's a fucking bitch to edit. Yeah. Because there were 7 mics, there are songs, there's Bakcho, there's fucking projectors, and we went the whole hog. Yeah. We put up pictures of the live episode online. Do check those out. Check this out. We're going to have another live episode soon. And it's going to be... in fact, let's just announce it right now. Let's just announce We're going to have another live episode at the Comedy Store on the 4th of September. There's going to be me, Khamba. There's going to be Rohan Joshi and Ashish Shakya on that. And a couple of surprises, hopefully, if everything works out. Yeah. So come check us out. I promise you it's going to be reasonably priced. And I promise you it's going to be a fun show. So come support the podcast and check us out. And before we go, a quick update on the shows we're doing. I am headlining the Cool Chef Cafe Festival on the 4th at Cool Chef Cafe in Bombay. That's cool. On the 5th, me, Khamba, Rohan are coming to Kolkata for the first time to an auditorium near you. Especially after the last episode where awesome. There we trashed Kolkata, and for good reason, cause you guys suck. So buy the t-shirt, ladies and gentlemen. We're at Kala Kunj 48 Shakespeare Sarani, and tickets are available on indianstage.in. So buy your tickets for that. I'm at Wild Wild West on the 9th of August as well. Fun Republic, so come there. Come check him out. I'm at the Comedy Store on the 14th, 16th, 17th, 18th, and 19th. Doing shows. There's going to be new material to do. Come check us out. That's all for August. August 25th, I'm at the Comedy Store as well. So come for that. So come check us out. Yeah, it'll be fun. And buy the fucking t-shirt. See you guys next time.